Hello everyone. Today we are going to discuss types of companies. Firstly, we will discuss the basic three types of company, that is chartered company, statutory company and registered company. Chartered company is a company which is incorporated with the royal charter of king or crown for trade purpose. The example of chartered company is East India Company. It was created by the crown of that time. The second type is statutory company. This company is created or incorporated under special statute, that is law. It is created under special law like LIC, Life Insurance Corporation, is a separate act, statute, and LIC is a company which is created under that law. Unit Trust of India is a separate act and UTI is created under it. So statutory companies are those companies which are created by special statute. The next type is registered company. A company which is registered under Companies Act 2013 is known as a registered company. There are two main types of registered company: unlimited company and limited company. The first one, that is unlimited company, means a company the liability of which is unlimited. It means the liability of members of unlimited company is unlimited. Their personal property can be used for the repayment of debt of the company at the time of liquidation or winding up. The limited company means the liability of members of the company is limited. This limited company is further divided into three parts, or we can say in three types. First one is company limited by guarantee. Company limited by guarantee means the member who has given guarantee, his liability will be limited to the extent of amount of guarantee provided by him at the time of winding up of company. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर गारंटी देता है कि कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उस समय वह एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी के लोन के रिपेमेंट के लिए या नुकसान के भरपाई के लिए देगा। तो ये हो गई गारंटी। तो उसकी जो लाइबिलिटी है, उस मेंबर की लाइबिलिटी इस गारंटी के अमाउंट तक ही है। मान लो उसने 5 लाख की गारंटी दी है, तो कंपनी अगर बंद होती है तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रहेगी। सो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। द सेकेंड टाइप इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स। ऐसी कंपनी जो शेयर्स भी देती है लोगों को और गारंटी भी लेती है लोगों से। तो उस केस में दो तरह से लिमिटेशन आएगी। पहला तो अगर मेंबर का अनपेड अमाउंट है शेयर का, तो उसकी उस चीज़ पे लाइबिलिटी रहेगी। और सेकेंडली अगर उसने गारंटी भी दी है तो गारंटी अमाउंट की भी उसकी लाइबिलिटी रहेगी। मान लो मेंबर ने कंपनी के 50,000 के शेयर लिए और 5 लाख की गारंटी दी, तो 50,000 के शेयर में से 20,000 रुपये देना बाकी है, जिसको हम बोलेंगे अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। तो जब भी कभी कंपनी बंद होगी तो इस मेंबर को वो 20,000 रुपये देना पड़ेगा। दैट इज़ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर ही विल बी लाइबल टू पे, and the amount of guarantee, that is 5 lakh rupees, he will be liable to pay.
Other than this, he is not at all liable for amount, for any other amount. So this is company limited by guarantee and shares. The next one is company limited by shares. The company in which there is no guarantee and only shares are issued to the public or to the members, and members are liable only up to the amount which is unpaid, which remains unpaid. Such company will be known as company limited by shares. This company limited by shares is further divided into two types, that is public limited company and private limited company. So now we are going to discuss these two types of companies in detail. Private limited company is a company which is by its article restricts the right to transfer its shares. प्राइवेट कंपनी वह कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा ही उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का जो राइट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है. लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप 200 तक लिमिट कर देता है. 200 से ऊपर एक बंदा भी उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता. ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग प्राइवेट कंपनी में मेंबर बोल के रह सकते हैं. एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी. प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी को रोकता है जनरल पब्लिक को इनविटेशन भेजने के लिए, शेयर्स और डिबेंचर में सब्सक्राइब करने के लिए. मतलब प्राइवेट कंपनी शेयर्स और डिबेंचर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकता. ये इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है. सेकेंडली, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर रहते हैं. थर्डली, कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर या डिबेंचर के लिए इनविटेशन नहीं भेज सकती. So by this definition we can see the features of private company, that is the number of members मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200. प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन और मैक्सिमम 200 लोग रहेंगे प्राइवेट कंपनी में. मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़. सो पेड अप शेयर कैपिटल यानी कम से कम 1 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का. पेड अप शेयर कैपिटल मीन्स कम से कम 1 लाख रुपए के अमाउंट शेयर होल्डर से उस कंपनी को मिल जाने चाहिए. ये मिनिमम अमाउंट बोली है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपए तक का पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी का होना ही चाहिए. थर्ड वन इज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर दैन इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स. तो प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं भेज सकती है डिपॉजिट के लिए, ना ही जनरल पब्लिक से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. तो प्राइवेट कंपनी अपने ही मेंबर्स, अपने ही डायरेक्टर्स और अपने ही रिलेटिव्स को इनविटेशन भेज सकती है और उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट वन इज बैन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी. अगेन जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी, वैसे ही जनरल पब्लिक को शेयर खरीदी करने के लिए या डिबेंचर्स लेने के लिए प्राइवेट कंपनी
इनविटेशन नहीं दे सकती जनरल पब्लिक को, वो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही इनविटेशन भेज सकती है। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स इफ एनी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो इजीली सेल हो जाते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं। तो राइट टू ट्रांसफ़र शेयर ये जो है, ये प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को ये जो राइट है इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। नेक्स्ट जो बोला है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल अबाउ सेड कंडीशन शुड बी इन ऑर्डर टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी। सो ऊपर जो 5 कंडीशंस दी है वो प्राइवेट कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। If any one of the condition is not fulfilled, the company shall be considered as public company। तो ये 5 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती है तो उसको समझा जाएगा, उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। In case of private company, it must add the words private limited at the end of its name। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लिखना कंपलसरी होता है। अ प्राइवेट कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। अब चलते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। So, according to Companies Act 2013, a public company is a company which is not a private company and has a minimum paid up capital of 5 lakh rupees and have the right to transfer the shares of the company। So, 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें पब्लिक कंपनी को बोला है कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है, कम से कम 5 लाख होना चाहिए, और जो अपने मेंबर्स को राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर ये देता है, वह कंपनी कहलाएगी पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, जबकि हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी का कम से कम 1 लाख होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनको राइट टू ट्रांसफ़र शेयर अवेलेबल होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में राइट टू ट्रांसफ़र शेयर पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे के फीचर्स। सो देयर शुड बी मिनिमम 7 मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स होना, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स आर सफिशिएंट। Second important feature is has a minimum paid up capital of 5 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed। 5 लाख या उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए तो उतना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट शेयर। पब्लिक कंपनी के शेयर के ट्रांसफ़र पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकती है और जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन भी दे सकती है। उस पर कोई भी प्रोहिबिशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी पर नहीं है। There are minimum 7 members required for formation of public company। पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। There is no restriction on maximum number of members। So because it is public company तो यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। Public limited company must have at least 3 directors। The public company has limited at the end of its name। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स उसमें होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के नाम के बाद में लिमिटेड ये वर्ड
होना चाहिए। जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब एक क्विकली हम देख लेंगे डिस्टिंग्विश या कंपैरेटिव स्टडी। सो प्राइवेट कंपनी के हमने मीनिंग कंपनीज एक्ट में दिया है कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर एंड लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही उसको रिस्ट्रिक्ट करता है शेयर ट्रांसफ़र करने से, और उसके मेंबर्स की नंबर्स को ही लिमिट करता है 200 पे। जबकि पब्लिक कंपनी वो कंपनीज है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स में देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी में देयर मस्ट बी मिनिमम 2 members एंड मैक्सिमम 200, वेयर एज फॉर फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी there must be at least 7 members and maximum there is no limit, that is unlimited because it is a public company. Statutory meeting, so private company is not under obligation or it is not mandatory for private company to conduct this statutory meeting. So this meeting is not compulsory under private company. So far as public company is concerned, it is compulsory for a public company to conduct and held this statutory meeting. So far as transfer of share is concerned, the shares of private company are not freely transferable and shares of public company are freely transferable. Capital, the paid up capital, minimum paid up capital of private company is 1 lakh and public company is 5 lakh. Issue of prospectus, so private company cannot issue prospectus to public at large. However, it can issue a statement in lieu of prospectus. So far as public company is concerned, it is compulsory for it to issue prospectus if it is going to involve large public for subscription. Then public company must issue a prospectus. Commencement of business, a private company can start its business activities immediately after getting incorporation certificate. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर सकती है. सो फार एज पब्लिक कंपनी इज कंसर्न, इट कैन स्टार्ट इट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. सो इनकॉर्पोरेशन के बाद में पब्लिक कंपनी को या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद में पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. उसी के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, there are minimum 2 directors under private company and 3 directors under public company. So यहाँ पे ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है. थैंक यू.